خدا کا کسی کو چھونا، خدا کا بے جان چیزوں کو چھونا، خدا کا نبیوں کو چھونا، خدا کا انسانوں کو چھونا، خدا کا پیغمبروں کو چھونا، خدا کا پیغمبروں کو چھونا، خدا کا چھونا۔ اور آج کا ہمارا عنوان اور ٹاپک یہی ہے۔ اس کے بعد ایک اس میں سے سب ٹاپک بھی نکلے گا، اس کے اوپر بھی غور کریں گے، اور وہ ہے یا لوگوں کا خداوند کو چھونا۔ ٹچنگ آف لارڈ لکھیے گا جو نوٹ کرنے والے ہیں۔ خداوند کا چھونا یا لوگوں کا خداوند کو چھونا۔ ہم اکثر یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں، خدا نے رات کو مجھے چھوا، میں دعا کر رہا تھا، میں کر رہی تھی، خدا نے مجھے چھوا۔ آج دیکھیں گے اس کا سارا پیٹرن کیا ہے، کیا معاملہ ہے، بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیا خدا واقعی چھوتا ہے یہ نہیں چھوتا، کن معنوں میں چھوتا ہے، کس طرح چھوتا ہے، اور کس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غلط تو نہیں سمجھ رہے کہ خدا نے مجھے چھوا۔ ابلیس بھی چھوتا ہے۔ یاد کریں اس نے کس کو چھوا تھا؟ چھوا نہیں تھا یسوع سے، ابلیس یسوع کو چھو نہیں سکتا۔ ابلیس نے کسی کو چھوا تھا، ابلیس بھی چھوتا ہے۔ ویری گڈ، ہوا کو چھوا تھا پہلی دفعہ، دوسری بار قائن کو چھوا تھا۔ اس طرح تو چھونا فرق ہے۔ ایوب کو بھی اس نے چھوا تھا، یا خدا نے پہلے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ فقط تو اس کے بدن کو سلامت رکھنا، باقی تو سارا جان و مال اس کو۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے اس کے بدن تک بھی پہنچنے دے، تو خدا نے کبھی اس کی جان سلامت رہے تو اس کے بدن کو بھی جو ہے وہ چھو کر آزمائش۔ ان تمام باتوں کے بارے میں ہم سیکھیں گے، اور 20 سے 25 منٹ میں لوگ اپنے ذہن کو ذرا شارپ رکھیے گا، مجھے آپ کی توجہ جو ہے وہ چاہیے۔ خداوند کا چھونا جی بڑا فائدہ مند ہے۔ میں چاہتا ہوں خدا آپ کو چھوئے، میں چاہتا ہوں خدا ہر وقت مجھے چھوتا رہے، میں چاہتا ہوں خدا آپ کو چھوئے، بیٹیوں کو چھوئے، بیٹوں کو چھوئے، کیونکہ جب خدا چھوتا ہے تو زندگی جاری ہوتی ہے۔ پیدائش کی کتاب نکالیے، یہاں پر خدا نے ایک بے جان چیز کو چھوا، اور خالی یہی نہیں کہ خداوند چھوئے، خداوند کا کلمہ بھی جا کر چھوتا ہے تو زندگی جاری ہوتی ہے۔ خداوند کا کلمہ صادر ہوتا ہے تو نئی نئی چیزیں تخلیق ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ خداوند جب چھوتا ہے تو زندگی جاری ہوتی ہے۔ دوسرے باب کی 7ویں آیت کو پڑھیے گا ذرا۔ اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا۔ زمین کی مٹی سے، زمین بے جان ہے، زمین گردش کرتی ہے، تو شعاؤں کے ذریعہ سے یا ہواؤں کے ذریعہ سے یا سائنٹیفکل کسی چیز کے ذریعہ سے زمین بذات خود اپنی ساخت میں بے جان ہے۔ خدا نے کیا کیا؟ زمین کی مٹی سے بے جان چیز کو لیا۔ بے جان چیز سے جان نہیں نکل سکتی، بے جان چیز ہی رہتی ہے، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتی۔ کوئی جاندار اس کو ہلانے والا ہونا چاہیے، جس کے اندر زندگی ہو، وہ اس کو زندگی دینے والا ہونا چاہیے۔ اور زمین کی مٹی بے جان تھی، کیونکہ زمین بھی بے جان تھی، اور خدا نے کیا کیا؟ اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم خدا نے زمین سے مٹی کو لیا۔ آدم لفظ اس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مٹی کا نام ہے۔ عبرانی میں مٹی کو کہتے ہیں ادمہ، اور چونکہ آدم کو مٹی سے لیا گیا تھا اس لیے اس کا نام آدم کہلایا۔ اس کا مطلب ہی مٹی ہے۔ انسان تو کیا ہے؟ ادمہ ہے، تو آدم ہے، تو مٹی ہے، اور کہاں جائے گا؟ مٹی میں پھر لوٹ جائے گا، خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ آدم کا مطلب ہی مٹی ہے، ادمہ۔ بے جان چیز سے کس کو لیا؟ مٹی کو لیا، اور اس کو سانا، اس کو چھوا، تو کیا ہوا؟ اس کے نتنوں میں زندگی کا دم۔ کس کا دم پھونکا؟ زندگی کا دم پھونکا۔ میں نے کہا تھا خداوند جب چھوتا ہے تو زندگی جاری ہوتی ہے۔ خداوند جب چھوتا ہے تو ہمیشہ کی زندگی جاری ہوتی ہے۔ خداوند جب فزیکلی چھوتا ہے تو ہماری فزیکل زندگی بڑھتی ہے۔ بات کو سمجھیں، خداوند جب فزیکل جسمانی طور پر چھوتا ہے تو جسمانی طور پر ہماری زندگی بڑھتی ہے، ہماری صحت یابی ہوتی ہے۔ خداوند جب روحانی طور پر چھوتا ہے تو روحانی طور پر زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے اس سامری عورت سے کیا کہا؟ اگر تو مجھے پانی پلاتی
अगर तू जानती कि तुझसे कौन जो है वो पानी मांगता है, अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे क्या देता? जिंदगी का पानी देता, ऐसा पानी देता कि तेरे अंदर जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाती। मेरे अजीजों, जब हमने तलावत की, एक वाकया पढ़ा, हवाला बड़ा जबरदस्त था, जरा निकालिए। इसमें दोनों बातों का तस्करा है। कोई एक शख्स ये वाला हवाला निकाल के रखे, कोई दूसरा शख्स यिर्मयाह का हवाला निकाले। खुदा ने नबियों को छुआ, पैगंबरों को छुआ। खुदा जिस इंसान को पुराने अहदनामा में छू देता था वो नबी कहलाना शुरू हो जाता था। उसकी जिंदगी में पूरी दुनिया से फर्क किस्म के मामलात होते थे। उसकी जिंदगी आम नॉर्मल लोगों जैसी नहीं होती थी, बल्कि उसकी जिंदगी सुपर नेचुरल होती थी। पहले यिर्मयाह का हवाला पढ़े जरा। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। यिर्मयाह मुझ पर नाजिल हुआ। बुजुर्ग यिर्मयाह कहता है तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। तब से मुराद इससे पहले नहीं हुआ। और जब खुदा का कलाम नाजिल नहीं हुआ उससे पहले इंसान नबी भी नहीं कहलाया। नबी उस वक्त कहलाता है जब कलाम नाजिल होता है, वही नाजिल होती है। आगे पढ़े। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, इससे बेशतर कि मैंने तुझे बतन में खलक किया। मैंने तुझे बतन में क्या किया? खलक करना किसको कहते हैं? क्रिएट करना, तख्लीक करना। बतन में तुझे खलक किया। इन द वॉर्म ऑफ अ वुमन, मैंने तुझे एक औरत के बतन में खलक किया। ज़बूर 127 में लिखा, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। आगे पढ़े। मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया। तेरी विलादत से पहले, जबरदस्त खुदा आपकी विलादत से पहले आपको मुकर्रर करता है। जबरदस्त खुदा, एलोहीम खुदा, एडोनाई खुदा, तख्लीक करने वाला खुदा आपको आपके खलक करने से पहले चुनता है। जब आप खलक ही नहीं हुए थे तो खुदा ने चुन कैसे लिया? जब हम खलक ही नहीं हुए तो खुदा ने चुन कैसे लिया? हाँ जी, आजकल सवाल वैसे ही में ज्यादा रहते हैं। जब हम कोई बंदा बना ही नहीं है, ये चीज मेरे सामने है ही नहीं, ये पौधा मेरे सामने है ही नहीं, तो मैं इसको मुकर्रर कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन इट इज पॉसिबल? जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है गोया कि वो हैं। जब तू खलक नहीं भी हुआ था तो मैंने तुझे चुन लिया। लोग सवाल करते हैं अपॉलोजेटिक में, हमसे सवाल किए जाते हैं। ये देखिए जी, बाइबल मुकद्दस में वर्ष गलत कोड की गई है। जब कोई इंसान खलक ही नहीं हुआ तो उसको मुकर्रर कैसे कर लिया? अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने उस मछली को हजारों करोड़ों साल पहले मुकर्रर कर दिया था कि मेरा बंदा यूना इसके अंदर जो है वो बसेरा करेगा 3 दिन के लिए। वो मुकर्रर कर लेगा। आगे पढ़े। और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। आगे पढ़ते जाएं। तब मैंने कहा, हाय खुदावंद, हाय खुदावंद, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो बोल नहीं सकता। हाय खुदावंद, मैं तो बच्चा हूँ। जिसको खुदा नबी बनाना चाह रहा है वो कहता हाय खुदावंद, मैं तो बच्चा हूँ। खुदावंद का जाहो जलाल पुराने अहदनामों में कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक दफा हैकल से खुदा का जलाल गुजरा था, लोग अधमुए होकर गिर गए। आजकल कुछ लोग सलेम की बड़ी मुखालफत करते हैं। एनीवे, एक अलग टॉपिक है। खुदा का जलाल को पुराने अहदनामों में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पहले खुदा को छुआ नहीं जा सकता था। हम देखेंगे आगे जाकर ये क्या मामला है, क्योंकि उस पहाड़ पर जो सुरमा हो गया था, राग हो गया था, खुदा का सिर्फ थोड़ा सा जलाल ही आया था। तो बनी इस्राएल कौम ने कहा था कि हम आइंदा को ये आके हमारे साथ कलाम ना करें, बल्कि कोई शख्स भेजे जिसके वसीला से ये कलाम किया करे, हमसे कलाम ना करे, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उससे पहले पुराने अहदनामा में खुदा को छुआ नहीं जा सकता था, बल्कि अगर कोई अहद के संदूक को, जो खुदा के अहद का संदूक था, अगर कोई हाथ लगाता तो वो मर जाता। अगर कोई पाक तरीन मुकाम में चला जाता जहां पर खुदा का जलाल होता, वो मर जाता। बड़े बड़े कहां मर गए थे अगर उनके अंदर गुनाह था, वो पाक तरीन मुकाम में जाते, वहां पर उनकी हलाकत हो जाती। पुराने अहदनामे में खुदा को कोई नहीं छू सकता था, खुदा ही अपनी मर्जी से अपने रूह के वसीला से लोगों को छूता था। यिर्मयाह क्या कहता, पढ़िएगा।
तब मैंने कहा, हाय खुदावंद खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ। मैं तो बच्चा हूँ। अब आज भी हम कहते हैं, हम अपने आप को खुद रिजेक्ट कर देते हैं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। आज हिम्मत बढ़ाई खुदा ने तारक भाई की, उसने ज़बरदस्त लीड किया। सिस्टम चलता रहेगा, प्रैक्टिस होती रहेगी, तो ये गला एक जोरदार गला बन जाता है। फिर खुदा के काम को जो है वो आप साबित करते हैं। आगे बढ़े जी। उसने फिर क्या किया? मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो बोल भी नहीं सकता। लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया, यूं ना कह कि मैं बच्चा हूँ, यूं ना कह मैं काला हूँ, यूं ना कह मैं बदसूरत हूँ, यूं ना कह मैं कमजोर हूँ, यूं ना कह मैं छोटा हूँ, यूं ना कह मैं मजदूर हूँ, यूं ना कह मेरी जुबान काम नहीं करती। बल्कि क्या पढ़े आगे क्या लिखा है? क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा हालेलुया। तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा अगर करेगा। आप किसी भी कंडीशन में हैं, जब खुदा आपको भेजेगा आप फातेह होगे। जब खुदा आपको भेजेगा आप लबरेज होगे कुव्वत से। जब आपको खुदा भेजेगा आप गालिब रहेंगे। और गालिब रहने का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया, गालिब रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप लड़े हैं। गालिब रहने का मतलब ये होता है कि बंदा पहले ही आपके सामने जो है वो हथियार फेंक के ज़ीरो हो जाए। यह गालिब रहने का मतलब। आगे बढ़े। खुदा ने क्या किया? तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, खुदावंद फरमाता है, मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूँ। मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूँ। तेरे साथ खुदा छुड़ाने को तेरे साथ है। और तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। तब खुदावंद ने, वो जो कहता था मैं बोल नहीं सकता, मैं तो बच्चा हूँ, तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। तो छूने के बाद यिर्मयाह क्या करता है? और खुदावंद ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। हालेलुया। देख आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर और एक सल्तनतों शख्स के पर, सामने मैं खुदावंद बोल नहीं सकता क्योंकि मैं बच्चा हूँ। मैं 2 लोगों के सामने बोल नहीं सकता क्योंकि मैं बच्चा हूँ। मैं 25 लोगों की कलीसिया के सामने बोल नहीं सकता क्योंकि मैं बच्चा हूँ। फिर खुदावंद ने मेरे मुंह को छुआ और उसने कहा, देख मैंने अपना कलाम तेरे अंदर रख दिया है। बस अब तू एक कौम के आगे नहीं बल्कि कौमों और कबीलों के सामने जाएगा और तू गिराएगा भी और तू उठाएगा भी। जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा मैं आसमान पर बांध दूंगा, जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा मैं आसमान पर खोल दूंगा। इसलिए कि अब खुदावंदों के खुदा ने तुझे छू लिया है। और जिसको खुदावंद छू लेता है वो लबरेज हो जाता है, उसकी कुदरत से लबरेज हो जाता है, उसके जलाल से लबरेज हो जाता है। मैंने तेरे मुंह को छुआ। यिर्मयाह कहता है खुदावंद ने मेरे मुंह को छुआ। उसने दाऊद को छुआ, उसने दाऊद को छुआ। दाऊद को कुछ छुआ नहीं चाह रहा था। नहीं, इसको रिजेक्ट करो, इसको साइड पे कर दो, ये तो अभी बहुत छोटा। पहला शमूएल निकाले 16 बाब जरा। यिर्मयाह को छुआ, खुदा ने नबियों को छुआ। और जिसको खुदा छूता था बंदा बदल कर और ही इंसान हो जाता था। 16 बाब की 8 से जरा पढ़िएगा। तब यसी ने अबिनदाब को बुलाया। अबिनदाब को बुलाया, ये यसी का बेटा था। और शमूएल को खुदा ने कहा था कि यसी के पास जा, उसके बेटों में से मैंने एक को चुना है, बस तू उनको जाकर बुलाकर उनको देख और जांच के मैंने किसको मसा किया है। और यसी ने अपने बेटों को बुलाया। सबसे पहले उसने अपने बहुत बड़े जाइंट बेटे को बुलाया। ये फौजी नुमा है, ये सोल्जर लगता है, ये इसको बुलाते हैं तो खुदा इसको चुनेगा। हो सकता है खुदा ने इसके लिए मुकर्रर किया हो। बड़े अमीनदाब को बुलाया और उसे शमूएल के सामने से निकाला। और ये मेरा बेटा बड़ा जबरदस्त है, ये तो लड़ाई में ऐसे है, ये बोलता है तो मैं कहता हूँ कि फाच कर देना दुश्मन को। इसको आगे लाओ, इसको मसा करो, मुझे पता खुदा ने इसको मसा करना है। जवाब इलाही क्या आया? उसने कहा, खुदावंद ने इसको भी नहीं चुना। इसको भी नहीं चुना। और फिर यसी ने शम्मा को आगे किया। हाँ जी, उसने कहा, खुदावंद ने इसको भी नहीं चुना। तो उसको भी नहीं चुना। ये बड़े बड़े जबरदस्त थे, बॉडी बिल्डर थे, इसको भी नहीं चुना। पहलवान थे, फिर किसको चुना? और यसी ने अपने 7 बेटों को शमूएल के सामने से निकाला। हाँ जी। और शमूएल ने यसी से कहा कि खुदावंद ने इनको नहीं चुना है। यसी की नजर में सिर्फ 7 बेटे थे। जो एक छोटा था अयाली था, अयाली कहते हैं चरवाहे को, भेड़ बकरियां चराने वाले को। उसको उसने मलूजे खाते नहीं रखा, उसको खाते भी नहीं रखा। जिसको इंसान खाते नहीं रखता ना, उसका खाता फिर खुदा ना। फिर क्या हुआ? पढ़े। फिर शमूएल ने यसी से पूछा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? यार ऐसा नहीं है कि खुदा मेरे साथ कलाम कर रहा है, खुदा गलत कलाम कर रहा है। तेरे सिर्फ 7 बेटे हैं,
और कोई है तो तू देख ले, जांच ले। हो सकता है किसी को तूने अपने खाते से निकाला हो, यार ये मेरा बेटा सही नहीं है, यार ये तो कमजोर है। पढ़े। उसने कहा, सबसे छोटा अभी रह गया। हाँ ये रह गया, इसको मैंने रहा ही हुआ समझा, ये रह गया है। वो भेड़ बकरियां चराता है। वो उसकी डेफिनेशन दे रहा है, उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन दे रहा है कि नहीं वो बंदा जो है ना, वो भेड़ बकरी चराने वाला, वो कहाँ लड़ने वाला, वो जीरो बंदा है, इसको छोड़ो। सैमुअल ने यिसै से कहा, उसे बुला भेज। हाँ जी। क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। हम नहीं बैठेंगे। आगे पढ़े, क्या लिखा है? बड़े तो वो उसे बुलवा कर अंदर लाया। और वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था। और खुदावंद ने फरमाया, उठ और उसे मसा कर। हालेलुया। ये है खुदा जो दिलों पर नजर करता है, अपने बंदों पर। वो ये नहीं देखता कि ये कद में जोरावर है, ये जान में जोरावर है। वो देखता है तो ये देखता है इसका रूह कितना जोरावर है, बस इसको मसा कर दे। पर मसा करने का मतलब भला क्या है? इसको तेल से छू। तो जब नबी तेल से छूता था, इसका मतलब था खुदा का रूह आकर छू रहा है। अगर आपको खुदा का रूह छूता है तो जबरदस्त बात है। डरे उस दिन से कि खुदा आपको छूना छोड़ दे। आगे पढ़े जरा, हेडिंग है आगे। तब सैमुअल ने तेल का सीन लिया। हाँ जी। और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया। हाँ जी। और खुदावंद की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से दाऊद के ऊपर नाज़िल होने लगी। तो जब दाऊद के ऊपर नाज़िल होने लगी तो एक बंदे के ऊपर से उठ भी गई थी। आगे पढ़े जरा। फिर सैमुअल उठकर रामा को चला गया। हाँ जी। और खुदावंद की रूह साउल से जुदा हो गई। साउल से जुदा हो गई। और क्या हुआ? और खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह उसे सताने लगी। खुदावंद जब आपको छूना छोड़ देता है तो फिर कोई और आकर छूता है। इस बात को समझ ले। जब खुदावंद आपको छूना छोड़ देता है तो फिर कोई और आकर आपको छूता है, और वो ऐसा छूता है कि आपको किसी काम का भी नहीं छूता। मेरे चीजों में आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने दाऊद को छुआ, खुदा ने यिर्मयाह को छुआ, खुदा ने मूसा को छुआ, खुदा ने एलिया को छुआ, खुदा ने नबियों को छुआ। पुराने अहदनामा में खुदा छूता था, इंसान खुदा को नहीं छू सकता था। आप ओल्ड टेस्टामेंट का जो है वो सर्वे करें, आप बुक ऑफ डिटोनॉमी पढ़ें, आप बुक ऑफ लेविटिकस पढ़ें, आप जाकर फरूज की किताब पढ़ें। इंसान खुदावंद को नहीं छू सकता था। एक वक्त आया, खुदा का बेटा जब आया, जब हैकल का पर्दा दो हिस्सों में तकसीम हो गया, जब खुदावंद के साथ सुलह हो गई, फिर खुदा को लोग छूने लगे, फिर खुदा का रूह भी छूने लगा। फिर ये बात सादर हो गई, अब खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान आ चुका है। हवाला निकालिए मरकस की इंजील 5 बाब की 21वें से जरा पढ़िएगा। हम यहाँ पर देखेंगे खुदावंद को भी किसी ने छुआ, खुदावंद ने भी किसी को छुआ। जब यीशु फिर कश्ती में पार गया, हाँ जी। तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई। बड़ी भीड़ तो मेरे यीशु के पास रहती थी। मैं खुश होता, जब मैं बाइबल का मुताला करता हूँ, मैं खुशी होता रहता हूँ। खुदा यीशु मसीह के आगे पीछे लोग चलते फिरते थे, उनका दिल करता था मैं इसकी बातें सुने। लोग घंटों गुजार देते थे, हमसे आधा घंटा नहीं गुजारा जाता। लिखा है मुसलसल 3 दिन से ये भीड़ मेरे पीछे है, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। लोगों ने, हम पराठे बनाने के लिए चर्च छोड़ देते, हमारे कपड़े प्रेसने हम चर्च छोड़ देते हैं, हमारी जूती अच्छी नहीं हम चर्च छोड़ देते हैं, हम छोटी सी बात के लिए चर्च जाना छोड़ देते हैं। पादरी साहब ने सही तरह मेरे साथ हाथ नहीं मिलाया, मैं चर्च नहीं जाऊंगा। पादरी साहब ने ये रवैया किया, मैं नहीं जाऊंगा। हम चर्च जाना छोड़ देते। मुसलसल 3 दिन से ये लोग मेरे पीछे हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। किसने कहा था? यीशु मसीह ने कहा था, इनको खाने को कुछ दो। आगे बढ़े। और वो झील के किनारे था, और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया। किसके खानों के सरदारों में? इबादत खानों के सरदार, जो खुद इबादत गुजार हैं, उनके सरदार हैं, हर रोज खुदा के हुजूर झुके रहते हैं। किसके पास आए? उनमें से एक यायर नाम आया और उसे जेरियस वन, यायर नाम एक आया और क्या कहने लगा? और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा। ये इबादत खाने का सरदार यीशु के कदमों में गिर रहा है और क्या कहता है? और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की। बहुत मिन्नत करने का मतलब भला क्या? पाँव पकड़ लेना और छोड़ देना। खुदावंद तेरी मेहरबानी, तूने ये काम करना ही है। एक दुआ हमारी ना सुनी जाए, दूसरी दफा हम दुआ करनी छोड़ देते हैं। यार कबूल ही नहीं दी बथेरे पादरियां कौन पता नहीं खुदा की मर्जी, खुदा तो साड़ी सुनता ही नहीं। क्या बहुत ज्यादा मिन्नत की, लिखा है, ये मेंशन है, बहुत ज्यादा मिन्नत की। हम बहुत ज्यादा मिन्नत ही नहीं करते, हम थोड़ी मिन्नत करते हैं। खुदावंद ही है ना, इंसान को थोड़ी है कि जिसकी मिन्नतें करेगा वो मानेगा नहीं। खुदावंद ही मान जाएगा। आगे पढ़े।
कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, हाँ जी, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और हाथ जिंदा उस रहे। पर रख, तू आकर अपने हाथ उस पर रख। इस शख्स को, इबादत गुजार को रूह के वसीला से या सीना मसीना के पास बात पहुंच गई है कि ये शख्स जब छूता है तो जिंदगी जारी होती है। ये शख्स जब किसी के ऊपर हाथ रखता है तो जिंदगी के पानी की नदियां जारी होती हैं। मैंने पहले कहा था टचिंग ऑफ द लॉर्ड, जब खुदावन छूता है जिंदगी जारी होती है। दुआ किया करे, खुदावन मेरे बेटे को छू दे, खुदावन दुआ करता हूँ मुझे छू दे, खुदावन दुआ करता हूँ मेरे हस्बैंड को छू दे, मेरे बेटी को छू दे, मेरे बेटे को छू दे, खुदावन मैं दुआ करता हूँ छू दे। क्योंकि जब तू छुएगा हर किस्म की नाराजगी जाती है। हालेलुया। जब तू छुएगा, अगर कोई रूहानी तौर पर मौत में मुब्तला है जिंदगी में आ जाएगा, अगर कोई बीमार परेशान लाचार है तंदुरुस्ती में आ जाएगा। खुदा मैं तेरी बहुत मिन्नत करता हूँ, आकर मेरी बेटी पर हाथ रख ताकि वो अच्छी हो जाए। आगे पढ़े क्या लिखा है, ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। और जिंदा रहे। देखो उस शख्स को पता है कि जब वो हाथ रखता है तो इंसान जिंदगी पाता है, ताकि वो जिंदा रहे। आगे पढ़े। बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग तो उसके क्या यीशु पीछे- ने मना किया? अरे यीशु मसीह मना नहीं करता। यीशु मसीह कदमों के साथ चलकर उसके साथ साथ जा रहा है। अब उसको कदमों पर चलने की कोई जरूरत नहीं है। अभी उसका नाम लिया और वो आपके दरमियान में आकर मौजूद हो जाता है, लेकिन अभी हम उसको पुकारना नहीं चाहते। उसने कहा मैंने नहीं जाना, उस आप वो आपको भी नहीं कहेगा कि नहीं मैंने नहीं आना। बुलाएं उसे जब तक वो मिल नहीं जाता। पढ़े आगे। बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो हाँ, मैंने लिए। कहने लगा कि बहुत से लोग उसके पीछे होते थे। बहुत से लोग, आज भी बहुत से, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग उसके पीछे चलते हैं, बहुत से लोग। और फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, पहले क्या डिमांड थी कि क्या करे तू आकर मेरी बेटी पर हाथ रखे यही छुए। अब मामला फर्क है। अब क्या है, फिर एक औरत जिसके 12 वर्ष से खून जारी था बीमारी में मुब्तला थी। और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी ओके, और अपना सारा माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ। कुछ फायदा ना हो, सारा माल खर्च करके भी। इसका मतलब ये है कि अब वो पैसा तो है नहीं, तो वो मुफ्त के चक्कर में है कि किसी से को मुफ्त शिफा मिल जाए। सारा लिखा ना, सारा माल तो अपना वो तबीबों के पास उड़ा चुकी थी। अब उसका ये सिस्टम था, आपको मुफ्त मुझे शिफा मिल जाए, वो तो पैसे नहीं है, तो मुफ्त शिफा मिली उसको। पढ़े। उसे कुछ फायदा ना हुआ बल्कि ज्यादा बीमार हो गई बहुत थी। ज्यादा बीमार हो गई। और यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और और? उसकी पोशाक को छुआ। किसने छुआ? यीशु ने छुआ। पहले किसने छुआ था? यार की बेटी को। यीशु से छूता भी है तो भी बरकत मिलती है, जब आप यीशु मसीह को छूते हैं तब भी बरकत मिलती है। आगे पढ़े, आगे हम ये भी जाके सीखेंगे कि अब हम यीशु मसीह को कैसे छू सकते हैं। जी, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी। ईमान का ये नुक्ता अरूज है, क्योंकि वो कहती थी अगर मैं उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो क्या करूंगी? तो अच्छी हो जाऊंगी। अच्छी हो जाऊंगी। आगे पढ़े क्या लिखा, और फिर फौरन उसका खून बहना बंद हो गया। क्योंकि उसके अंदर से जिंदगी निकलती है। अरे ये वही वाला है जो आदम को मट्टी से लेकर बनाता है और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंकता है तो आदम जीती जान होता है। एक शख्स ने मुझसे पूछा, जनाब आपका खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर से मट्टी लेता है, कभी वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, ऐसे बराह रास्त आवाज मारता है, मुझे ये सारी स्टोरियां फेक लगती हैं, तो कभी उसको मट्टी के ऊपर थूक फेंक कर उसको सान कर आंखों पे लगाने की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा भाई वो जो लाजर को जिंदा करता है वो मेरे लिए है कि वो बराह रास्त कलाम करता है तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। ये वाला जब उसने अपनी थूक फेंक कर मट्टी को सान कर अंधे की आंखों पर लगाया वो तेरे लिए है, क्योंकि तेरे अंदर ईमान नहीं है। तुझे पता चल जाए कि जब खुदा ने मट्टी से आदम को बनाया है, ये जो खुदा का बेटा है थूक फेंक कर मट्टी में सानता है, आंखों पर लगाता है, इंसान जिंदगी पाते हैं, तुम्हारे ऊपर साबित हो जाएगा ये खुदा का बेटा। वो ये वाली आयत तेरे लिए, वो वाली आयत मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए कलाम है ना। लोग सवाल करते हैं, आगे बढ़े जी। और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिर फौर अपने में मालूम करके किया कि मुझ में से कुव्वत निकली। मेरे अंदर कुव्वत रहती है तो निकली है। पत्रस इधर आ, मेरे अंदर से कुव्वत निकली। खुदावंद इतना रश है, भीड़ तेरे ऊपर गिरी पड़ती है, मगर तू कहता मुझे किसी ने छुआ। तुझे तो बेशुमार लोगों ने छुआ, एक ने ईमान के साथ छुआ। बाकी छू रहे थे, कोई शिफा नहीं मिल रही थी, एक ने ईमान के साथ छुआ। क्या हुआ?
यीशु ने उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? हाँ जी, उसके यीशु को ही पता था किसने छुई। कुव्वत एक बंदे के अंदर है, इलाही जात है। यीशु ने पूछा, किसने मुझे छुआ? यीशु को ही पता था। क्यों यीशु ने पूछा? ताकि लोगों को भी पता चले। ताकि लोग जान सकें, वेरी गुड, ताकि लोग जान सकें इस बंदे के अंदर कुव्वत है। और कुव्वत मिलेगी किस तरह से? ईमान के उसमें से। आगे बढ़ गए। उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है। उस्ताद जी देखो, इन्ने लोग ताड़े से बोल आले दुआले इकट्ठे ने, उल्लड़ मचा हुआ है। आप कह रहे हैं कि जनाब जी मुझे किसी ने छुआ है। यार यीशु मसीह को भी लोग समझाना शुरू कर देते थे। आगे बढ़े। उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया उसे देखे। हाँ जी, वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी। यार इतने लोग हैं, मैं बाइबल मुकद्दस में देखता हूँ, हर दूसरा तीसरा बंदा यीशु मसीह के कदमों में गिरता है। किसी इंसान के कदमों में गिरना चाहिए? नहीं ना गिरना चाहिए। विक्की भाई कह रहे नहीं, मैं भी यही कहता हूँ। लोग ये कहते हैं जी यीशु मसीह को, ये जाकिर नायक ने अपना वो दिया है जी, आर्टिकल दिया जी, बताएं यीशु मसीह ने कहाँ कहा है कि मेरी परस्तिश करो? यीशु मसीह ने कहाँ कहा है मैं खुदा हूँ? मेरी किसी के साथ इसी तरह बहस हो रही थी। मैंने कहा भाई आप मुझे ये वाली याद दिखा दें, यीशु मसीह ने कहाँ पर कहा मुझे सजदा ना करो, मैं खुदा नहीं हूँ। आप भी हमें दिखा दें। यीशु मसीह ने मना किया, नहीं पीछे हो जाओ, मुझे सजदा ना करो। कितने जितने भी लोग हैं यीशु मसीह के आगे गिरते थे, सजदा करते थे, यीशु मसीह ने कभी किसी को मना नहीं किया। उसको पता था मैं खुदा हूँ या खुदा का बेटा। अब कोई ना समझे, वो कहते हैं ना पंजाबी सुते लोग जो जगा लेते थे, जिन्हें केस मारी हो तो नहीं गिरा सकते, खा दे नहीं, वो मान ही नहीं दे। ये भी नहीं लिखा हुआ खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं खुदा हूँ, लेकिन ये भी नहीं लिखा खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं खुदा नहीं हूँ। बल्कि हवालों के साथ उसने वाज़ह किया कि मैं खुदा हूँ, मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं इब्तिदा और इंतहा हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। अलग से लेकर ये तक मैं ही हूँ, ए से लेकर जेड तक मैं ही हूँ, ए टू जेड मैं ही हूँ। ये खुदा है। अच्छा जी आगे बढ़े। उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली। ये भी और भी मुझे हाथ लगा रहे थे, उनको नहीं मिली तो उसकी कोई वजह है। ये जो तुझे मिली ये तेरे ईमान की, आपके अंदर ईमान है, आपको शिफा मिल जाएगी। इनके अंदर ईमान नहीं, इनको शिफा इसलिए नहीं मिली। अच्छा जी आगे पढ़े। सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के यहाँ से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई। और आगे के वाक़या को हम जानते हैं। बात करने का मकसद ये है, पुराने अहदनामा में लोग खुदा को नहीं छू सकते थे। इब्रानियों का खत निकाले 12वें बाब की 18 आयत पढ़िएगा जरा जल्दी से करके, बहुत डरावना सीन आ जाना। पहाड़ के पास नहीं आए हाँ जी, जिसको छूना मुमकिन था, हाँ जी, और वो आग से जल रहा था और उस पर काली घटा और तारीकी और तूफान। ये कौन सा पहाड़ है पादरी साहब? पूरब का पहाड़, जहाँ पर खुदा ने बनी इस्राएल कौम को अपना जाहो जलाल दिखाया और बनी इस्राएल कौम से बर्दाश्त ना हो सका और उन्होंने अंदर से कहा अब आइंदा को है मूसा ये वाला तेरा खुदा हमारे साथ कलाम ना करने आए। वो फर्क बंदा आए कलाम करने के लिए, फिर आया था उनकी डिमांड के ऊपर, उसका नाम था यीशु मसीह। ये उन लोगों की डिमांड पर था कि वो खुदा के असल जाहो जब वो पहले बज़िद थे, हमें अपना खुदा दिखा, हम देखना चाहते हैं। कभी तो वो सोने का बछड़ा बना लेते, हम खुदा को देख सकें फिजिकल, हम उसके आगे जिस तरह मिस्र के लोग देवताओं के आगे पूजा प्रस्तिश करते हैं, हम भी उसको छू सकें, उसको साफ कर सकें, अपने खुदा को। वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो मूसा को ब्लैकमेल करते थे, हारून को ब्लैकमेल करते थे, हमें खुदा दिखा। खुदा ने कहा मैं इनको अपना ज़हूर दूंगा, एक तजल्ली ये मेरी बर्दाश्त कर देना तो मूसा मुझे कह देना। खुदा अभी ठीक तरीके से उस पहाड़ के ऊपर आया भी नहीं था, लोग भाग गए थे। वो पहाड़ सुरमे जैसा इस तरह से काला हो गया था, बिल्कुल मैदान हो गया था। और ये इब्रानियों का मुसन्निफ उस बात का जो है वो जिक्र कर रहा है कि उस पहाड़ को छूना मुमकिन नहीं था। वहाँ पर लोग, वो जल रहा था पहाड़, वहाँ पर लोग जा न सके, बल्कि करीब थे जो वो तो मारे गए थे। इसका मतलब है खुदा को छूना नामुमकिन था। नए अहदनामा में उस औरत ने खुदा को छुआ, उसको ज़िंदगी मिली, उसको शिफा मिली। नए अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह के आने के बाद आप उसके लाडले हो चुके हैं, आप उसके बेटे और बेटियाँ हो चुके हैं। आप उसके जाएं घर में, उसको फ्रिज में से खोलें, कोई चीज़ें खाएं, वो आपको मना भी नहीं करेगा। उसके तख्त पर जाएं, आप चीज़ें उठाएं, वो आपको मना भी नहीं करेगा, क्योंकि अब खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है। अच्छा जी, उसको छूना नामुमकिन था। मैं चाहता हूँ खुदा यीशु मसीह जो है
को मैं छुए रूहानी तौर पर। कुछ बच्चों को खुदा ने छुआ था। मरकज की इंजील निकाले जरा, 2 हवाले मेरे पास, उसके बाद मैं वाइंड अप करूँगा। एक्चुअली आज हमारा जो प्रस्तिश का जो है वो 10वें बाब की तरह निकालिए। मैंने 4th क्लास में इस हवाला को जो है वो याद करके सबसे बेस्ट सुना के एक बाइबल की थी स्कूल में। मुझे याद अभी तक, उस वक्त भाई मोरस थे, वो जुम्मे की जो है वो मीटिंग करवाया करते थे। तो ये हवाला था जब मैंने इसको मुँह ज़बानी याद करके एक छोटी बाइबल इंजील मुक़द्दस थी, अभी तक मुझे याद है। जी पढ़े जरा। फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे, फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको क्या करे, उनको छुए। उनको छुए। माओ की ख्वाहिश थी। माओ को मेरे ख्याल से उस वक्त मुकाशफा मिल गया था उस दौर की माओ को कि खुदावंद हमारे बच्चों को छू ले। आजकल थोड़ा रुझान कम है क्योंकि खुदावंद नजर नहीं ना आता, इसीलिए माएँ कहती नहीं खुदा मेरे बेटे को छू ले, मेरी बेटी को छू ले। आज मामला फर्क है। उस वक्त लोग माएँ अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लाई और क्या कहने लगी, ताकि वो उनको छुए। और मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे यीशु तो चाहता है मैं छूऊं लोगों को, जो मना करता है यीशु से खफा हो जाता है। यार मैं अपने बच्चों को छूना चाहता हूँ, आप उनको परेशान करते हो, चलो पीछे को, इनको मेरे पास आने दो, इनको मना ना करो। क्यों? और उनसे कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। अब जब पादरी साहब ने ये कहा कि जब यीशु मसीह छूता है, खुदावंद छूता है, तो बड़े काम होते हैं।